So once you see my screen, just let me know it's visible to all you guys. Put it in the chat box. You guys see my screen? Okay, thank you. Okay, thank you guys. So yeah, let's start with our first session. So yeah, before start, I just mentioning one or two points that yeah, I'm taking this webinar for our group members, and yeah, so your whatever your question and answer, please put it paste that in the chat box or put in the group or keep it at the end of the session. I will just cover whatever I want to cover, and after end of the session, last 5 to 10 minutes, we'll take question and answers if time permits. Otherwise, I will uh, answer each and every question in group, or you can message me personally, put in the chat box of the meeting, or put in the group as well. Okay. So yeah. So just okay. Check. I just check it's like what. Okay. So I just started. So okay. So I will start with my journey as a trader. Okay. So when I started. So yeah. So in 2013 I started my journey in the trading or stock market. So with my office colleague, whenever I'm working at the time, my office colleagues and all. So I just one more question for all you guys. Just let me know Hindi and English is combination is okay for you guys. Just put in the chat box Hindi and English. Okay, thank you. Yes, understand. Okay. So yeah, so just okay, understand. So I will do it as Hindi and English mix. So it will be very easy to convey my message, whatever I want to convey. So yeah, so let's start with our first point. So my journey as a trader. So I started in 2013 in the stock market, and yeah, I started with the approach कि बहुत पैसा बनाना है, मेरे कलीग्स पैसा बना रहे हैं, मैं आजू बाजू देख के लग रहा है कि लोग पैसा बना रहे हैं शेयर मार्केट में, सो आई कम इन दैट एंड आई स्टार्टेड ट्रेडिंग. Okay, so my approach to enter in the market is making a big money in a quick time. Okay, so I started trading. I taking a tips from, if once you open the demat account, you know all you experience, you get the calls from the brokers or the tips provider. Okay, I will give you tips. आप एक दिन में 1 लाख बनाओगे, 2 लाख बनाओगे, whatever it is, in option, future, stock, equity, whatever it is. And I started trading. So initially I get the good profits in first, second, third trade, or first week, second week. I get the good profit and get, so because of that big profit, मेरा कॉन्फिडेंस इतना है हो गया कि यार सैलरी अपने को इतना ही मिल रहा है, एंड देन एक वीक में हमें 30,000, 40,000, 25,000 प्रॉफिट मिल रहा है. सो हम इसमें ज्यादा पैसा डालेंगे तो और ज्यादा प्रॉफिट आएगा. सो आई बोरोड मोर मनी इन द मार्केट. मेरा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकते इसको, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि पैसा जल्दी आता है और ज्यादा पैसा डालोगे तो ज्यादा पैसा आएगा. सो आई टेकिंग द टिप्स फ्रॉम ब्रोकर. मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं, आजू बाजू वाले फ्रेंड्स कलीग्स बोल रहे हैं कि ये ले लो ऊपर जाएगा, ये ले लो नीचे जाएगा. सो लाइक दैट आई स्टार्टेड माई जर्नी. एंड वन डे comes that ki I get a loss of almost my trading account got 70% वाइप आउट. कोई नॉलेज नहीं था स्टॉप लॉस कैसे लगाना, स्टॉप लॉस क्या होता है, कुछ भी मालूम नहीं था. मेनी ऑफ द न्यू स्टूडेंट और मेनी ऑफ द न्यू ट्रेडर में फेस दिस इश्यू की ऑर्डर कैसे डालना है, स्टॉप लॉस क्या होता है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, कुछ नहीं पता. लोग बोलते हैं, मैसेज आता था कि यहाँ पे बाय करो, कहाँ पे एग्जिट करना है, कुछ पता नहीं. सो लाइक दैट आई स्टार्टेड माई जर्नी. This is a totally incorrect approach. After 10 years of experience, I tell that. So at that time I have a loss of around, in a 6 month I have a loss of the around 4 to 5 lakh rupees. So I am in a total loss of 5 to 6 lakh rupees in my initial journey. So reason behind that,
my approach. So the word approach is very important for you guys. Approach to enter the market need to be correct. मेकिंग अ मनी, या सबको पैसा बनाना है, पैसा बनाने के लिए हम लोग मार्केट में आए हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू फॉलो सम प्रोसेस, सम डिसिप्लिन. ओके, क्विक पैसा तो कहीं से भी बन सकता है, नॉट मार्केट. तुम जॉब कर सकते हो, तुम बिजनेस कर सकते हो, वॉट एवर यू कैन डू. देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू मेकिंग द मनी, नॉट ओनली शेयर मार्केट. बट लोग जब शेयर मार्केट में आते हैं तो लोगों को क्विक मनी चाहिए. एक दिन में या एक महीने में करोड़पति बनना है, एक दिन में 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, ऐसा अप्रोच होता है, जो मेरा भी था इनिशियल स्टेज में. So on that point, I just want you guys to say कि while entering in the market, approach सही रखो कि first learn मार्केट क्या है, how to trade, when to trade. किसी के टिप्स या न्यूज के ऊपर तुम जब भी काम करोगे, you will get a loss. That I faced. Okay, so your approach should be a correct. So your approach should be a follow the discipline, follow the process. So on this point, discipline, process, how I will come in later of the webinar. So I just want to say on this first point कि मेरा जर्नी में मैंने स्टार्ट किया था तो I start with the wrong approach. So after 8 to 10 years of experience, I come on the track. So still I am learning, but yeah, I am come on the track. I know कि how to enter in the trade, where to exit, where to take the stop loss, where to take the targets. Now I am know. So while coming in the market, I just want to say कि initial stage, keep expectation low. Whenever new trader come in the market, they come with the expectation कि एक दिन में मुझे 1 लाख बनाना है या एक दिन में मुझे 10 लाख बनाना है. ओके, सो मार्केट में पैसा बनता है, मार्केट में पैसा आप अनएक्सपेक्टेड मनी यू कैन मेक. तुम जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हो. फॉर दैट you need a discipline, you need a proper skill. Okay, so on that I will come on later of the webinar. So yeah, so on my journey or my experience, I just want to say keep expectation low, approach to enter the market not to make a money, just follow your discipline, learn the things, how market is work, how to trade, because in market only 20% of your study works, or 80% is your psychology, mental psychology. So whenever you trade, and one more point I just want to focus कि जब भी नए लोग आते हैं मार्केट में, they start trading in a big quantity. Okay, so this point is very important for all of you. Might be there are some experienced trader in the webinar, so they also might experience that कि जब भी नए आते हैं मार्केट में, they start trading in a huge quantity. Okay, and when trade go against you, वो लॉस हम लोग बेयर नहीं कर सकते. सो दिल में धक धक हो जाता है कि यार ये बड़ा लॉस हो रहा है, क्या करूं क्या करूं. सो व्हाइल यू आर इन अ न्यू इन द ट्रेड और यू आर नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर, टिल टाइम यू ट्रेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी, ट्रेड इन वन क्वांटिटी, टू क्वांटिटी, देयर इज नो लिमिटेशन कि इतना ही क्वांटिटी मिनिमम लेना है या मैक्सिमम लेना है. यू टेक वन क्वांटिटी, यू ट्राई यूर स्टडी. एक क्वांटिटी में लॉस कितना होगा, मैक्सिमम 2000 का भी इक्विटी स्टॉक लिया आपने तो भी वो इंट्राडे में 200-250 रुपए में मिल जाता है, और एक दिन में 50-100 पॉइंट के ऊपर कोई भी स्टॉक नहीं मिलता है. So if you take a one quantity and try your study on there कि कितना मेरे हिसाब से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, whatever it is you learn or you have skills or you have knowledge, and then if एक quantity में आपको सक्सेस मिल रहा है कि आपके हिसाब से टारगेट हिट हो रहा है, then you increase your quantity to 5, take for 1 week, then increase your quantity to 10, again check for the 1 week. 1-2-3 महीना ऐसा जाने दो कि हम मेरे हिसाब से मार्केट जा रहा है क्या, एज पर माई टेक्निकल एनालिसिस नॉलेज और एज पर माई वॉट एवर यू हैव नॉलेज जा रहा है क्या, देन यू कैन ट्रेड इन अ 1 लाख क्वांटिटी और 10 लाख क्वांटिटी. देयर इज नो लिमिट टू क्वांटिटी, बट इनिशियल स्टेज डोंट ट्रेड बिग, क्योंकि जब भी इनिशियली मेजर लॉस इन द मार्केट इज यूर कॉन्फिडेंस लॉस. पैसा तो हम गया तो कल किसी से भी लेके वापस मार्केट में आ सकते हैं, बट एक बार आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो वो कोई नहीं ला सकता. कितना ही मैं बताऊँ, आप कहाँ से भी ट्रेनिंग ले लो, आप इवन सबसे भारी ट्रेडर जो भी है इंडिया में उससे भी ट्रेनिंग लेंगे एंड योर कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर, देन आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे. सो ट्रेडिंग इन दिस जर्नी यू हैव टू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस. तो पैसा जाएगा तो आएगा. नाउ आई एम इन अ स्टेज की लॉस भी होता है तो आई नो कि कैसे रिकवर करना है. सो लॉस होता है तो मैं डरता नहीं हूँ, या मुझे कुछ ज्यादा ये नहीं, क्योंकि हाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि मेरा जो भी स्टडी है वो नहीं चला. सो आई एग्जिटेड देयर एंड आई टेकिंग दैट वॉट एवर स्टॉप लॉस, 10,000 20,000 जो भी स्टॉप लॉस मैंने लिया आई नो, और मुझे पता है कि मैं वो कल कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी सीख रहा हूँ, बट सम कुछ नॉलेज है, कुछ प्रोसेस है, कुछ डिसिप्लिन है जो मैं फॉलो करता हूँ. सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू फोकस ऑन लर्निंग,
focus on increasing your skill and trade small for initial journey. At least minimum first 3 to 6 months you trade small. If you have good knowledge, trade small. मेंटेन योर ट्रेडिंग जर्नल कि मुझे एक वीक में इतना रिजल्ट मिला है, मुझे मेरे टारगेट हिट हुए, 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड में टारगेट हिट हुआ है, 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस हुआ है. अगेन नेक्स्ट वीक एक की जगह 10 क्वांटिटी ले लो, वॉट एवर रिजल्ट सी, आपके रिजल्ट आपको लग रहा है कि 70% से ज्यादा एक्यूरेसी मिल रहा है मुझे, वॉट एवर आई स्टडी और वॉट एवर आई मार्क, देन यू इंक्रीज योर क्वांटिटी. आपको नाउअडेज क्या, जब मैं देखता हूँ कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, लर्निंग कम है, एंड बट दे हैव द मनी and they're tracking a big trades like 500 quantity, 1000 quantity, 5000 quantity, and if trade goes against them, then there is a big losses, 1 lakh 2 lakhs. तो people I see कि 2 लाख 3 लाख लॉस एक दिन में किया हुआ है, क्योंकि नॉलेज नहीं है एग्जिट कहाँ पे करना है, पता नहीं, मार्केट क्रैश हो गया एंड देन इट गेट लॉस, एंड उन्होंने मार्केट छोड़ दिया, जो कि उनको अभी उन्होंने स्टार्ट किया था, उनको पता है कि क्या गलतियां उन्होंने की है, वो गलतियां नहीं करना है तो हम सक्सेस कर सकते, बट ड्यू टू लॉस ऑफ मनी दे लूज देयर कॉन्फिडेंस, उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस लूज कर दिया एंड दे लीव द मार्केट. सो 70 to 80% लोगों का यही होता है कि वो इनिशियल स्टेज में आते हैं, बड़े ट्रेड्स करते हैं, लर्निंग के ऊपर कोई फोकस नहीं होता है, एंड देन दे मेक द लॉस, एंड आफ्टर मेकिंग द लॉस दे ब्लेमिंग द मार्केट कि मार्केट गैम्बलिंग है, अपने बस की बात नहीं है. इनिशियल स्टेज में मैं खुद जब मार्केट में आने से पहले आई ऑल्सो से कि मार्केट गैम्बलिंग है, मत करो, बट जब मैंने पढ़ाई की, मैं कुछ स्किल्स लर्निंग्स किया, आफ्टर दैट आई एम फ्रॉम लास्ट 10 years आई एम इन द मार्केट. या इनिशियल स्टेज आई आल्सो डोंट गेट द सक्सेस, बट लास्ट 2 to 3 years आई एम अ सक्सेसफुल ट्रेडर and making a good money. So share market is my primary income nowadays, and I put posting my everyday trades in a group nowadays, how I trade, what I trade, whatever my profit, whatever my losses, I put every trade I put in the group. That reason behind that is to learn and then earn. It's not showing you guys to my profit or loss. You make big profit than me as you if you invest more money. Skill is same for all. Whatever I learn, you can also learn. And after that, if you have the big investment, you can make big money. But before that, you need is a skill, learnings, and discipline process. So I just summarize the journey of as a trader of my. So focus on your approach to enter in the market. Enter in the market with the right approach. Don't believe in any news, tips from any broker, any tips provider. Don't expect quick money from the market. Focus on the learning, skills, discipline. Okay. Then focus on your mental psychology. हमें कितना पैसा चाहिए मार्केट से, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ कि बाबा मैं जब 20 साल 18 साल जब स्कूल कॉलेज करता हूँ, तो मैं जब एज अ फ्रेशर आता हूँ तो मुझे सैलरी कितना मिलता है, 10,000 15,000. बट मार्केट में हम 15 दिन 1 महीना स्टडी करके आते हैं और वो एक्सपेक्ट कि 1 लाख रुपए महीने में चाहिए, 2 लाख रुपए महीने में चाहिए. प्रैक्टिकली रखो. वंस यू आर एट दैट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, 1 साल 2 साल आप जब मार्केट में खेलोगे, आपको एक स्किल डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिकली. मार्केट आपको डेली कुछ ना कुछ नया सिखाता है. टिल डेट आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स इन एवरी डे. तो जब आप एक बार यूज टू हो जाओगे मार्केट के लिए, देन यू कैन मैनेज कि मुझे बड़ा प्रॉफिट कैसा करना है, एंड यू मेक अ बिग चंक ऑफ मनी दैट यू नेवर एक्सपेक्ट इन फ्रॉम मार्केट. देयर इज नो एनी फील्ड इन द वर्ल्ड कि इससे ज्यादा पैसा दे सकता है इफ यू हैव अ स्किल. बट फॉर दैट यू हैव टू इनिशियली यू हैव टू ट्रेड स्मॉल, फॉलो द डिसिप्लिन, मेक योर ट्रेडिंग प्लान कि मुझे एक दिन में इतना ही लॉस करना है. इफ फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि एक दिन में 2000 प्रॉफिट करना है, 500 रुपए लॉस करना है, आपका 2000 प्रॉफिट हो गया, आपका ट्रेडिंग टर्मिनल बंद करो. Nowadays my target for day is 20,000. If you see in my videos many times, after 20,000 profit I close my trading terminal, I am not trading, and after 6 to 7,000 of stop loss I close my laptop and I am not trading for that day. कि मेरा स्टॉप लॉस का टारगेट हिट हो गया है, मेरा 6,000 7,000 जो भी टारगेट है वो हिट हो गया, लॉस हो गया, आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा. या 20,000 प्रॉफिट हो गया आज का, मैं ट्रेड नहीं करूंगा. या ओके, इन सम डेज आई ट्रेडेड मोर कि एक ही ट्रेड में मुझे 40,000 25,000 प्रॉफिट हो जाता है. इन दैट केस इट्स ओके, बट मैक्सिमम टाइम 70% ऑफ टाइम वंस आई क्रॉस द प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज पर डे आई क्लोज माई टर्मिनल. सो लाइक दैट यू डिसाइड कि मुझे दिन में 2,000 प्रॉफिट करना है, 500 रुपए लॉस करना है, वॉट एवर हिट फर्स्ट आई विल क्लोज माई टर्मिनल एंड फॉलो दिस फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months. तो दिस विल कीप यू इन द मार्केट. ये डिसिप्लिन आप फॉलो करोगे ना तो आपको मार्केट में रहने को मिलेगा. इफ यू नॉट फॉलोइंग फ्रॉम सुबह 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होता है, 3:30 बजे क्लोज होता है. इफ यू आर ट्रेडिंग फुल डे,
योर पीस विल नॉट बी देयर, आपका दिमाग जगह पे नहीं रहेगा, यू आर ऑलवेज इन स्ट्रेस। एंड सुबह 9:15-10 बजे जो भी ट्रेड किया उसमें प्रॉफिट हुआ तो 3:30 बजे आप उसको मार्केट को वापस देके जाओगे। दैट्स माय एक्सपीरियंस, मेनी ट्रेडर आल्सो हैव दैट एक्सपीरियंस की सुबह प्रॉफिट में रहते हैं 10-15 हजार एंड एंड ऑफ द डे 10-15 हजार लॉस में रहते हैं, जो हुआ प्रॉफिट वो भी जाता है और अकाउंट से भी जाता है। सो दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी। व्हाई दिस हैपेंस कि टारगेट हिट हुआ है तो छोड़ दो ना, 9:15 से 3:30 बजे पूरा 6 घंटा ट्रेडिंग करने की जरूरत है नहीं। यदि मैं दिन भर बैठूंगा तो मुझे पता है कि मैं 20 हजार की जगह 25 हजार बना सकता हूँ, बट वो दिमाग एक दिन नहीं करना है हमें। मार्केट विल नॉट टू मेक मनी इन वन डे, हमें डेली का वी मेक दिस एज अ प्रोफेशन। लाइक जब भी हम जॉब करते थे या जॉब जो भी आप लोग जॉब करते हो कि मंथली सैलरी आता है, सो हमें कंसिस्टेंट इनकम चाहिए फ्रॉम मार्केट, नॉट अ गैम्बलिंग कि एक दिन में 1 लाख बनाया 10 लाख बनाया एंड छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है ना। सो फोकस ऑन यूर इम्प्रूविंग योर स्किल्स, योर लर्निंग। इनिशियल स्टेज में कम से कम क्वांटिटी में काम करो। लॉसेस होना ही है, मार्केट में लॉसेस होता ही है। देयर इज नो वन की लॉसेस नहीं होता है मार्केट में, ओनली द गॉड दैट डोंट हैव द लॉसेस। बाकी सब जो भी ह्यूमन बीइंग है लॉसेस मार्केट में होता ही है, कितना भी मास्टर रहने दो कोई भी रहने दो, जो बोलता है कि लॉसेस नहीं होता है डायरेक्टली मैं बोलता हूँ वो झूठ बोल रहा है। बट हाउ टू मैनेज योर लॉसेस शॉर्ट, दैट इज योर स्किल, कि कम लॉस करो और जब भी प्रॉफिट होता है तो वो पूरा का पूरा मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे होगा। तो फॉर दैट यू हैव टू इंप्रूव योर स्किल्स। ओके, सो छोटा छोटा लॉस करो और उस छोटे लॉस में बहुत बड़ा सीखो। दैट आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट की छोटा स्मॉल लॉस करो और वो छोटे लॉस में से बड़ा सीखो कि बाबा इसमें क्या गलती किया मैंने, सो ये गलती नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। आपकी गलतियां जो भी हो रही है वो नोट डाउन करो और एक एक गलती पे काम करो। एक दिन ऐसा आएगा 2-3 महीने में कि सारी गलतियां भी आपने काम कर लिया है एंड नाउ यू कैन ट्रेड। सो देन slowly gradually you increase your quantities. Okay, so initially trade small, follow your discipline, make your trading plan। आप जो भी रोज ट्रेड करते हो ना, 1 क्वांटिटी हो 10 क्वांटिटी हो, जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है यहाँ पे 500 क्वांटिटी, उसका आप एक एक्सेल शीट में बनाओ कि आज मैंने क्या ट्रेड किया। एंड ऑफ द डे जाके उसको रिव्यू करो कि मैंने क्यों ट्रेड किया, मेरे प्रोसेस में बैठ रहा था क्या, मार्केट ऊपर जा रहा है करके बाय किया, मार्केट नीचे जा रहा है करके सेल किया। सो आप नेवर सक्सेसफुल नहीं हो गया। आप एक दिन मार्केट डायरेक्टली घूम जाएगा और आपका सारा पैसा लेके जाएगा। सो एवरी ट्रेड जब भी आप एंटर करोगे आपको पता होना चाहिए कि मुझे एग्जिट कहाँ पे करना है एंड वेयर आई एंटर्ड and where my target is. So for that you need to be know the technical analysis. So I am coming on that technical analysis point. So hope you understand कि my journey मैंने क्या किया था। So initial stage में मैंने बड़े बड़े ट्रेड्स किए, लॉसेस किए, तब जाके मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होगा। So I started to learn the market. So 3-4 साल मैंने मार्केट में स्टडी किया। So कुछ क्लासेस किए, कुछ ट्रेनिंग्स लिया and then I realized कि skill and knowledge is the key for success and main is the discipline. So when you follow your discipline you make the consistent money. So from last 3 years out of my 10 years journey 7 years is not a good journey. Yeah, it's a कभी प्रॉफिट है कभी लॉस है, कभी प्रॉफिट है कभी लॉस, ऐसा जर्नी था। बट लास्ट 3 years I have consistent profitable trader. So my primary income is consistent share market only. So I making a money from the share market as my primary income, and professionally I am a mechanical engineer. Okay, so as an engineer you if anyone of engineer is there they know कि इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं। सो लाइक दैट कि मैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर होके भी मैंने मार्केट में स्टडी किया एंड आई एम मेकिंग अ गुड मनी। और इसमें आई जस्ट वांट टू 2 to 3 थिंग टू टेल कि इसमें फायदा क्या है। तो जब भी आप ट्रेडर बनोगे ना, सो फर्स्ट ये आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपका है कि कितना चाहिए पैसा उतना कमा सकते हो। योर बॉस कोई नहीं रहेगा, आपका कोई बॉस नहीं है कि आज क्यों काम नहीं किया, ऑफिस क्यों नहीं आया, लेट क्यों आया। whenever you want you can take your leave, आप जब चाहे छुट्टी ले सकते हो। वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। रिक्वायर्ड थिंग इज 1 लैपटॉप इंटरनेट कनेक्शन और 1 मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। आप जितना चाहे उतना टाइम फैमिली को दे सकते हो, आपको कोई बर्डन नहीं रहेगा। बट फॉर दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स, योर लर्निंग। डोंट फोकस ऑन द मनी। इफ यू हैव द स्किल्स, इफ यू हैव द प्रॉपर नॉलेज, मनी विल फ्लो बिहाइंड यू। मनी आएगा, पैसा तो आएगा, पैसा बाय प्रोडक्ट है मार्केट के लिए, पैसा आएगा। मैं भी इनिशियल स्टेज में था कि पैसा आना चाहिए यार, एक ट्रेड लिया तो इतना प्रॉफिट होना चाहिए। अभी मैं वो नहीं देखता हूँ। मैं चार्ट पे जब भी मार्किंग करता हूँ मेरा ये टारगेट है, यहाँ पे जाएगा तो मैं एग्जिट करेगा, यहाँ पे नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लूंगा। जैसे ही चार्ट में मेरा टारगेट स्टॉप लॉस हिट होता है तब जाके मैं प्रॉफिट लॉस में देखता हूँ कि इतना प्रॉफिट हुआ इतना लॉस हुआ। सो जब ये आप
फॉलो करोगे या डिसिप्लिन आएगा ना, देन यू कैन 100% यू विल मेक द मनी इन द मार्केट. ओके, सो दिस इज द जर्नी एज अ ट्रेडर है. सो आई लेट्स come to the next point. Define your why. Okay, so I just say ki define your objective. What is your objective come into the market? So making money is the प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एवरीवन. सो अब मैं भी नहीं ये बोलूंगा कि पैसा नहीं कमाना है ऐसे ही मार्केट में, नहीं, पैसा कमाने के लिए सब लोग हैं. पैसा तो कमाना ही है, सबको कमाना है, मुझे भी कमाना है. बट डायरेक्टली पैसा कमाना या ऑब्जेक्टिव रख के आओगे ना मार्केट में तो नहीं होगा, क्योंकि वी हैव टू बी फॉलो. सो क्या करना है, पैसा क्यों कमाना है, ये आपको पता होना चाहिए. कि फॉर एग्जांपल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए. आप किसी का लोन होता है, किसी जो भी, सबके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. लोन के ईएमआईज है, फ्लैट की ईएमआईज है, कार ईएमआई, व्हाटएवर. टाइम चाहिए, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे ड्यू टू जॉब, हेक्टिक जॉब. कुछ लोग जॉब करते हैं 12-12, 14-14 घंटे जॉब करते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते. ऑन टाइम लीव्स नहीं मिलता है, कोई फंक्शन को लीव्स नहीं मिलता है, सो इरिटेट हो जाते हैं. सो टाइम देना है फैमिली को. बॉस, इस फील्ड में आप आपके खुद के बॉस हो. सो कुछ ऐसे कुछ रीजन है जिसको आप ऑब्जेक्टिव रख सकते हो कि मुझे मेरा खुद का बॉस बनना है, मुझे मेरे फैमिली को टाइम देना है, खुद को टाइम देना है. फाइनेंशियल फ्रीडम, इफ यू आर अ फाइनेंशियल फ्रीडम देन आप बाकी सब कुछ कर सकते हो. यदि पैसा है आपके पास तो आप सब कुछ कर सकते हो, फैमिली को टाइम दे सकते हो, कुछ भी. बट पैसा ही नहीं है तो आप कुछ नहीं, टाइम रहेगा तो भी वो पीसफुल टाइम नहीं रहेगा. सो फॉर दैट डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव कि मुझे क्यों आना है मार्केट में. मार्केट में आने का मेरा रीजन क्या है. पैसा आएगा जब आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास स्किल होगा, आप वो डिसिप्लिन फॉलो करोगे, आप प्रोसेस फॉलो करोगे, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा. मार्केट ऊपर या नीचे जाना ही है. बट मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम मार्केट के साइड में है क्या, मार्केट नीचे जा रहा है तो हम मार्केट के साइड में, ओनली दैट वी हैव टू लर्न. सो फॉर दैट वी हैव टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस. ओके, सो डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव्स कि मार्केट में क्यों आना है. डायरेक्टली मार्केट में मत आओ कि मुझे पैसा कमाना है या क्विक पैसा कमाना है. मार्केट में क्विक पैसा भी बनता है, मैं नहीं बोलता हूँ कि कुछ ट्रेडर ऐसे भी है, मैंने देखे कि आया इनिशियल स्टेज में बैंक निफ्टी जैसे इंस्ट्रूमेंट में काम किया, फर्स्ट डे उनको 2 लाख 3 लाख प्रॉफिट हुआ क्योंकि उस दिन मार्केट ट्रेंडिंग था. बट एक दिन में सारा पैसा लेके जाता है. एक दिन में 2 लाख कमाने से अच्छा है कि धीरे धीरे पर डे 5,000 10,000 कमाओ और कंसिस्टेंटली इनकम बनाओ, नॉट कि एक दिन में 2 लाख बनाए. कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलता है कि एक दिन में 10 लाख भी बना सकते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू बी ए पेशेंट. आपके पास स्किल होना चाहिए, आप प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का वेट करो, प्रोसेस होना चाहिए, देन इट्स पॉसिबल. लाइक गैम्बलिंग मत करो कि किसी ने बताया, ट्रेड लिया एंड इट ऊपर गया. अभी मैं आप लोग देखते हो कि मैं ग्रुप में चार्ज डालता हूँ, मैं कभी भी ग्रुप में चार्ज डालता हूँ तो यहाँ पे बाय करो, उस लेवल पे बाय करो, कोई वैल्यू नहीं देता हूँ. पॉजिटिव अबाउट दिस, निगेटिव अबाउट इतना ही बोलता हूँ. आप लोग जाके सर्च आउट करो या सीखो कि इसके ऊपर ही पॉजिटिव क्यों बोला है. आई विल कम ऑन दैट चार्ट की चार्ट में डालता हूँ तो उसको कैसे स्टडी करना है क्या, मैं अभी आऊंगा उसके ऊपर. बट जस्ट तो मैं डाल सकता हूँ ग्रुप में कि इसके ऊपर बाय करो, इतना टारगेट रखो, उतना स्टॉप लगाओ. बट वो क्या होगा, आपकी डिपेंडेंसी हो जाएगी, आपका स्किल इंप्रूव नहीं होगा आपकी डिपेंडेंसी. सो आप, मैं जो चार्ट डालता हूँ वो जाके खोल के देखो कि यहीं पे लाइन क्यों मारा है, ये क्या किया है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है. सो आप लोग जब सीखोगे ना तब जाके आपको मजा आएगा कि यार हाँ ये ऐसा वर्क होता है. मार्केट में कुछ तो टूल्स है टेक्निकल एनालिसिस जैसा, जहां से हम पैसा बना सकते हैं. सो डिपेंडेंसी मत रखो किसी का, किसी के ऊपर, न्यूज के ऊपर ट्रेड मत करो, कोई बोल रहा है करके ट्रेड मत करो. बी योर ओन एनालिसिस, डू योर ओन एनालिसिस, बी योर ओन बॉस and then trade karo. So second point is define your objective, okay, and then come into the market. Let's go to the next point, technical analysis and price action. So I just already told in my first point and second point कि टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा टूल है हमारे पास मार्केट में, हम जहां पे यूज करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट विल गो अप, गो डाउन, क्या 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 करेगा, मार्केट का प्राइस एक्शन क्या होगा. टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन. तो प्राइस एक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्राइस क्या कर रहा है. कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, प्राइस एक्शन क्या कर रहा है. प्राइस ऊपर जाने को ट्राई कर रहा है, नीचे जाने को ट्राई कर रहा है. हाउ टू प्रेडिक्ट दैट, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का, शेयर मार्केट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. 100% गारंटी कोई नहीं देगा शेयर मार्केट की. यदि आपको बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ 100% ये ऊपर ही जाएगा या 100% नीचे जाएगा, वो झूठ बोल रहा है. बट हमें प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे साइड रहना चाहिए. उसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस एक टूल है जो हमें सीखना है, या आप लोग सीखो. आफ्टर हैविंग द नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस यू कैन मेक अ ह्यूज मनी. आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे इतना मनी बना सकते हो, बट यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शंस. ओके, सो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस. मैं चार्ट्स भी दिखाऊंगा कुछ, तो उसमें हम और डिटेल में जाएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है, क्या होता है. ओके, so our next point is support and resistance. Okay,
So what is support and what is resistance? So I just explain you कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है. तो टेक्निकल एनालिसिस में n नंबर ऑफ पैरामीटर्स है. अभी एक ही वेबिनार में मैं सारे नहीं बता सकता, बट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा पैरामीटर है उसमें कि सिर्फ एक ही पैरामीटर भी आपके पास गुड नॉलेज रहेगा ना, तो आप इसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो पूरा लाइफ आपका. कोई ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं. ज्यादा सीखना पड़ता है क्यों? एक्यूरेसी के लिए, या और एक्यूरेसी आने के लिए, या और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेने के लिए. बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा कंसेप्ट है कि इसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो. आई जस्ट explain you the support or resistance in the chart. So let's go into the chart. If you see on my screen, so just ping into the chat कि आपको स्क्रीन, मेरा चार्ट का स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? ओके. also let me कि मेरा फ्लो जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है. आप लोगों को कुछ फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी फीडबैक कि स्लो जाओ या फास्ट हो रहा है या बराबर चल रहा है. ओके. सो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अच्छा चल रहा है, गुड चल रहा है. सो थैंक यू फॉर योर फीडबैक. ओके, थैंक यू. सो बहुत सारे चैट आए कि ठीक चल रहा है. ओके. सो इफ यू सी ऑन माय चार्ट, okay, so I just open two charts here. So one is Bank Nifty and this is the Axis Bank. So if you see, before that I just explain you the support resistance concept, so you will understand the support, what is support and what it is. This is a very basic. So whoever in the webinar is the experienced trader, please just bear for the 5 to 10 minutes, as I am focusing on the new trader in our group. So we'll all help to new traders and then take them with us. So I just explaining the basic of support and resistance for now, and then after we'll go into the chart. So ये दो लाइन है. सो आई जस्ट, इफ यू सी ऑन माय स्क्रीन कि मैंने ये दो लाइन डाला हुआ है. सो ये रेड कलर का है जो मेरा स्टॉक है, प्राइस एक्शन है, प्राइस स्टॉक मूव हो रहा है. सो लाइक दैट स्टॉक मूव हो जाता है. सॉरी, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, सो जस्ट बेयर विद मी. ओके, ये स्टॉक मूव हो रहा है, यहाँ पे गया, वापस आया. Okay, so if you see on the screen, so this just okay, so if you see on the screen, guys, so this is the support line. So stock moves and comes. So support means in अपने सीधी हिंदी लैंग्वेज में बताता हूँ कि जब भी हमारा फ्लोर रहता है, जहाँ पे हम खड़े रहते हैं जमीन पे ऊपर, वो सपोर्ट है हमारे लिए. और जो भी सीलिंग रहता है हमारे घर का, टेरेस रहता है, सीलिंग रहता है, वो हमारा रेजिस्टेंस है. हम फ्लोर तोड़ के नीचे नहीं जा सकते, एंड सीलिंग को हम तोड़ के ऊपर नहीं जा सकते. यदि ऊपर तोड़ के गए तो नेक्स्ट फ्लोर पे जाएंगे. तो जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसेप्ट ध्यान में रखना है ना, तो फ्लोर और सीलिंग और टेरेस ध्यान में रखना है हमारे घर का. सो आप हमारे इजीली आप ध्यान में रख सकते हो कि ये सपोर्ट है जहाँ पे स्टॉक खड़ा है, और ये रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर स्टॉक जाके वापस आ रहा है. तो जब भी स्टॉक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके यहाँ पे जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, तो ऑन दिस एरिया आपको प्रिकॉशन लेना है कि ये यदि ब्रेक करता है तो आई गो फॉर बाय विद द स्टॉप लॉस ऑफ बिलो दिस रेजिस्टेंस. ओके, एंड यहाँ से यदि रिटर्न आना चालू होता है जर्नी, तो नेक्स्ट सपोर्ट हियर है. तो यहाँ तक ये आएगा. यहाँ पे जब आएगा तो आपको टेक केयर करना है कि यहाँ से रिटर्न घूम सकता है या ये ब्रेक होके नीचे भी जा सकता है. सो ऑन दिस एरिया ओनली यू हैव टू टेक केयर. सो सपोर्ट क्या होता है कि मार्केट में स्टॉक ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे अगेन यहाँ पे आके टच किया, अगेन यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे आया, टच किया. तो फॉर दिस मार्किंग द सपोर्ट यू नीड 2 पॉइंट्स, मिनिमम 2 पॉइंट्स. ओके, सो दीज आर द 2 पॉइंट्स आई हैव, 1 2. ये 2 पॉइंट से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाला, तो थर्ड टाइम मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे आया और ऊपर गया. सो ये हम लोग चार्ट में भी देखेंगे, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द बेसिक. Okay, then same in the resistance, I have 2 points here. So from that I mark the horizontal line. Okay, and after that this is the third point where market. So on this area I am taking caution कि यहाँ पे मार्केट यदि ब्रेक करता है तो I will go to the buy. So यहाँ पे ब्रेक किया, मैंने बाय किया. बट अभी आप लोग देखोगे रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया. वंस रेजिस्टेंस ब्रेक्स, अगेन इट्स कम एंड रिटेस्ट इट. बट अभी ये रेजिस्टेंस कन्वर्टेड टू सपोर्ट.
जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ इट्स सपोर्ट फॉर द स्टॉक, अगेन टेकिंग सपोर्ट, गोइंग अप, कमिंग अगेंस्ट टू द सपोर्ट, गोइंग अप. तो जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो कन्वर्टेड टू सपोर्ट. जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है, लाइक दैट, इफ यू सपोर्ट ब्रेक हुआ, नीचे आया स्टॉक, अगेन गो हियर एंड कम डाउन, तो ये कन्वर्टेड टू रेजिस्टेंस. तो कीप इन माइंड कि रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट होता है, और सपोर्ट जब भी ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है. ओके, तो हम लोग बेस चार्ट्स पे देखेंगे, बट ये बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, यू गाइस अंडरस्टैंड? इफ यस, जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स कि आपको अंडरस्टैंड हुआ है. सो आई विल गो इनटू द चार्ट. ओके ओके, थैंक यू. सो बहुत सारे लोगों का चैट आया है कि अंडरस्टैंड हुआ है. ओके, सो दिस इज, कीप इन माइंड कि ये जो बेसिक है ना, लाइक हम जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं ना कि ABCD Z तक सीखते हैं, उसके ऊपर से हम इंग्लिश कितना भी अच्छा बोल सकते हैं, या कुछ लोग अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, कुछ लोग मीडियम बोल लेते हैं, लाइक दैट की ये बेसिक सीखना है. बेसिक से आप टेक्निकल एनालिसिस को कितना भी एडवांस बना सकते हो, या मीडियम बना सकते हो, लो बना सकते हो, बट बेसिक जो भी एडवांस इंडिकेटर्स है, जो भी है, वो सब कुछ है, वो एडवांस है, वो हेल्प करता ही है, बट वो कुछ भी वैल्यू नहीं है उनका एडवांस का जब तक आपको ये बेसिक पता नहीं है. ओके, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक है, पैटर्न्स है, ये अभी सारा आज कवर नहीं होगा. विल सी कि हाउ विल डू दैट, बट ये बेसिक जब तक आपको नहीं आएगा ना, एडवांस आपको काम नहीं करेगा. सो कीप इन माइंड, कोई भी आपको बोलता है ना कि मैं ये इंडिकेटर सिखाता हूँ, आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगा, और कुछ नहीं सिखाता बेसिक, तो नहीं. प्राइस एक्शन इज द गॉड ऑफ द मार्केट. प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, स्टॉक क्या कर रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ये जब तक आपको प्रेडिक्ट या करना नहीं आता है, या मार्किंग करना नहीं आता है, आपको कोई इंडिकेटर आपके लिए काम नहीं करेगा. ओके, दैट इज द माई एक्सपीरियंस. कोई लोगों को मिल रहा रहेगा सक्सेस तो वो कर सकते हैं. एंड फॉर दिस, ओके, सो विल गो इनटू द चार्ट. आई जस्ट रिमूव दिस ऑल एंड विल सी इन द एग्जैक्टली चार्ट कि हाउ. तो इफ यू सी, जैसे मैंने बोला कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, पास्ट में क्या हुआ, हमारे पास चार्ट का हिस्ट्री है, पास्ट में क्या हुआ है चार्ट में हमें पता है कि हम उसके ऊपर से लाइन मार्क कर सकते हैं. अभी मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूं. ये ट्रेडिंग व्यू का विंडो आप लोग जो देख रहे हो वो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग.com का विंडो है. ये फ्री में है, यहाँ पे हम चार्ट मार्किंग वगैरह कर सकते हैं. फॉर ट्रेडिंग मैं जीरोधा यूज करता हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत क्वेश्चन आया कि आप कौन सा ट्रेडिंग टर्मिनल यूज करते हो. तो मैं जीरोधा ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ, बट मार्किंग के लिए मैं ये इन्वेस्टिंग.com यूज करता हूँ. यहाँ पे टूलिंग्स थोड़ा अच्छा है, एंड ये फ्री में है. आप लोग भी इन्वेस्टिंग.com चाहिए तो इसका लिख के ले लो या स्नैपशॉट ले लो कि इन्वेस्टिंग.com आई यूज फॉर द मार्किंग. तो आप लोग यूज कर सकते हो इसको, ये इजी है, एंड मार्किंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे. ओके, so let's go to the support and resistance in the chart. So if you see on my screen, Axis Bank chart is there. Okay, so I just put here one horizontal line. If you see why I am putting this horizontal line here, I see here कि ये एक पॉइंट है. ओके, एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, जहां पे मुझे दिख रहा है कि ये दो पॉइंट, ये इस पॉइंट पे आया, मार्केट नीचे आया, अगेन यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और रेड कैंडल बनाया, मार्केट नीचे गया. ओके, ये दो पॉइंट है, आपको दिख रहे हैं, ये दो पॉइंट से मैंने लाइन मार्क किया कि ये रेजिस्टेंस है. अभी मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ. ओके, करेक्ट है, ये रेजिस्टेंस है. अभी जब भी फ्यूचर में इस रेजिस्टेंस की नियर आएगा, मैं टेक केयर करूंगा कि यहाँ से मुझे रिटर्न जर्नी दिखाता है, एक रेड कैंडल रेजिस्टेंस की यहाँ पे बनाता है, देन आई गो फॉर सेल, और ये ब्रेक करता है तो मैं बाय के लिए जाऊंगा. सो लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या हुआ है. ओके, यहाँ पे आया, एंड इफ यू सी ब्रेक किया, सो ऑन दिस लेवल ब्रेक करने के बाद मैं बाय के लिए जा सकता था एक्सिस बैंक. तो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया उसने. सो नाउ एक्सिस बैंक इज पॉजिटिव एंड इट विल गो अप. कब कहाँ तक ऊपर जाएगा, तो इन फ्यूचर, इन पास्ट चेक करना है कि कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पे आगे का उसको रेजिस्टेंस है. सो लेट ऐड वन मोर लाइन. सो ये यहाँ पे एक पॉइंट है. तो मैक्सिमम टचेस आप जितना करोगे ना इन पास्ट फ्यूचर में, यहाँ पे एक टच है, यहाँ से रिटर्न गया, यहाँ पे है, तो जितना मैक्सिमम टचेस रहेगा उतना अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा. मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पर मैक्सिमम टच जितना होगा वो उतना अच्छा है. सो दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम, बट ये कंसेप्ट आप इंट्राडे के लिए यूज भी कर सकते हो. आई एम अ टोटली इंट्रा डे ट्रेडर, तो मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, एंड यू कैन यूज इट इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम आल्सो. ओके, सो आई जस्ट शो यू कि मैं जो ग्रुप में चार्ज डालता हूँ वो कैसे रीड करना है. तो फॉर बट बिफोर दैट, यू गाइस अंडरस्टैंड सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसेप्ट.
I just take one more example. For example, Bank Nifty बहुत सारे लोग करते हैं. I will take a Bank Nifty example. Receipt chart. So if you see here, so I just now in front of you, I just mark the line. So this is the history. If you don't know the future, this is the historical data you have. So this is the area. This is the area where I can mark the. So you can mark, not required कि every time horizontal line ही होना चाहिए. Okay. You can mark manually. I just delete this. कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे गैप है तो क्या है. So not required कि horizontal line ही मार्क करना है. I just जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ले लो and you mark it like that way. Okay. आपको पॉइंट मिला. मैंने क्या बोला कि मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए मुझे. यहाँ पे मुझे पॉइंट मिला है, यहाँ पे पॉइंट मिला है. मैंने ये 2 पॉइंट लेके लाइन मार्क किया हुआ है ऑलरेडी एंड आई विल एक्सटेंड दिस लाइन. ओके, मैंने ये लाइन एक्सटेंड किया. तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया. ओके, पर जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है ना, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दो. एक कैंडल का क्लोज वैल्यू उसके ऊपर चाहिए. आफ्टर दैट क्लोजिंग ऑफ कैंडल, above that candle you can buy. So like that. Now in this chart, ये कैंडल ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो इमीडिएटली ब्रेक करने के बाद बाय मत करो. कैंडल क्लोज होने दो. ये कैंडल क्लोज हो गया. जो भी क्लोजिंग वैल्यू रहेगा ये उसका क्लोजिंग वैल्यू है. ओके, ये क्लोजिंग वैल्यू है. इसके ऊपर आप लोग बाय कर सकते हो. स्टॉप लॉस आपका रहेगा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉप लॉस रहेगा लो ऑफ दिस कैंडल. ओके, बट कैंडल यदि बहुत ही बड़ी है तो यू कैन मैनेज योर स्टॉप लॉस एज अ मीडियन ऑफ दिस कैंडल, बट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से लो ऑफ दिस कैंडल. सो जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो कैंडल ऊपर क्लोज होना चाहिए. नहीं तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि रेजिस्टेंस ब्रेक होता है बट कैंडल गोज अगेन डाउन. ये ऊपर क्लोज नहीं होता है, जस्ट एक फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं हम उसको. मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट बहुत आते हैं. तो फॉल्स ब्रेकआउट को बचने के लिए हमारे पास एक टूल है कि जिसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं. डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस. 100 टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी चलेगा, बट विदाउट स्टॉप लॉस आपने ट्रेड किया, 10 दिन आपको प्रॉफिट मिलेगा. एक ही दिन में इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, 10 दिन का प्रॉफिट प्लस आपका अकाउंट का पूरा पैसा लेके जाएगा मार्केट. तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है. ओके, स्टॉप लॉस इज द की. तो मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो मेक नोट डाउन करो ये पॉइंट कि स्टॉप लॉस, एवरी ट्रेड शुड हैव स्टॉप लॉस. एवरी ट्रेड, इफ यू आर ट्रेड इन अ सिंगल क्वांटिटी और यू ट्रेड इन 1 लाख क्वांटिटी, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही है. विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड करोगे ना तो मैं 99% आप फेल ही हो जाओगे. कभी कभार आपको सक्सेस मिलेगा, वो लाइक अ गैम्बलिंग की आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा. ओके, एंड व्हाइल डूइंग द एनालिसिस आप कोई भी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर सकते हो. जितना ज्यादा फॉर इंट्राडे टेक 1 आवर टाइम फ्रेम, इट्स माय सजेशन. क्योंकि मैक्सिमम डेटा आता है, मार्किंग तो वही रहता है, मार्किंग चेंज नहीं होता है, उसी लेवल्स पे मार्किंग होता है. टाइम फ्रेम कोई भी ले लो. ओके, बट 1 आवर पे लोगे तो स्क्रीन पे डेटा ज्यादा आता है. ओके, तो हिस्टोरिकल डेटा स्क्रीन पे हमें ज्यादा दिखने को मिलता है कंपेयर टू 15 मिनट्स. सो 1 आवरली फॉर इंट्राडे टाइम फ्रेम यू कैन 1 आवरली लेके हम मार्क कर सकते हैं. ओके, सो होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे करना है. ओके, जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करना है या सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है. जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स. सो आई विल गो इनटू द चार्ट्स दैट आई पोस्टेड इन द. ओके, ओके गाइस, थैंक यू. सो बहुत सारे. सो इफ यू सी ऑन द स्क्रीन कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया, उसके बाद सी द जर्नी ऑफ बैंक निफ्टी ऑन सिंपल कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस. बैंक निफ्टी ने कितना मूव दिया है, इफ यू सी 2000 पॉइंट्स का मूव दिया है टिल डेट. यहाँ पे ब्रेक किया है. इफ यू आर पोजिशनल ट्रेडर आप बहुत बड़ा प्रॉफिट ले सकते थे. ओके, सो मैं फोकस करता हूँ, आई एम अ मैन की मैं बैंक निफ्टी इंस्ट्रूमेंट ही ट्रेड करता हूँ. मैं दूसरा कोई स्टॉक्स ट्रेड नहीं करता हूँ. मैं ग्रुप पे डालता हूँ, उसमें मेरी वाइफ, मेरे सिस्टर्स सब लोग ट्रेड करते हैं, जो भी मैं चार्ट्स डालता हूँ ग्रुप में. बट मैं बैंक निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ कि मुझे पसंद है. तो वन मोर सजेशन मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग्स तो है, आप सब लोग करो, बट फाइंडिंग द स्टॉक किस पे ट्रेड करना है. मार्केट में एन नंबर ऑफ स्टॉक्स है, आप सब पे ट्रेड या सबका एनालिसिस डेली नहीं कर सकते. तो कोई तो आप डिसाइड करो कि मुझे ये 5 या 10, 2-4 स्टॉक 5 स्टॉक ले लो और उसी के ऊपर फोकस करो. सब स्टॉक आप करते बैठोगे ना तो यू विल नेवर गेट अपॉर्चुनिटी की ट्रेड. तो मिनिमम 5 to 10 स्टॉक ही ले लो
और उसी के ऊपर आपका स्टडी अप्लाई करो एंड ओनली ट्रेड दैट 5 to 10 स्टॉक. ओके, माय वॉइस इज क्लियर बिकॉज आई गेट द मैसेज कि वॉइस ब्रेक हो रहा है. So all other my voice is clear. Okay, voice clear है. Amol, I think you have to check at your end. Okay, we'll continue. We'll continue, guys, because we have to close at 11:30. So yeah, so this is the concept of support and resistance. Okay, I just go into the PPT again. What is the next point? So technical analysis, price action. So all these analysis, whatever we'll do is called as the technical analysis. For technical analysis, support resistance is the basic criteria. Many more to learn there. Candlesticks. So this, if you see on my screen, these are the red and green are the candlesticks. So and there are the many different shapes of these candlesticks. So what the shapes define? Okay, and how candlestick reacts. They are. This is also important concept. Then patterns है, support resistance के बाद trend line है, patterns है, many more to learn. But yes, I just covered today support resistance. This is the most important concept that you must know while analyzing the my charts in the group. Okay, so let's go to the next point. So support resistance is clear to all of you guys. So how to read the chart posted in the group? Okay, this is the one concept that I just want you guys to understand. तो मैं बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि सर चार्ट रीड कैसे करना है. सो आई जस्ट 28 अगस्त लेटेस्ट चार्ट अभी मैं, इफ यू सी चार्ट ऑन माय स्क्रीन इमेज, just yes, okay. So this is the chart I posted in the group. Every day before start of market I posted the charts, and I just use the simple concept. I am not applying my all technical analysis on the chart, as I don't want to confuse you guys. So I just support and resistance I just mark. So if you see on the screen now, this is the Sunfall chart I posted in the last trading day, that 28th of August. Okay, and I just taking these 2 points and this point, okay, to mark this resistance line, and this point and this point for mark this support line. And then again there is a one horizontal line. If you see this area is take resistance, this area is resistance. So one horizontal line. These 3 lines I mark using the some simple support resistance, and what I say, positive above 539. So why 539? This line is at 538.6. okay, so it breaks 539, you can go. So I just say कि कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए. सो ये फर्स्ट कैंडल क्लोज नहीं हुआ. इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट कैंडल नीचे आया वापस, सेकंड कैंडल रेड बनाया, थर्ड कैंडल ऊपर क्लोज हुआ. ओके, यहाँ पे क्लोज हुआ. सो अबव दिस यू कैन बाय, बिलो दैट यूर स्टॉप लॉसेस एंड यू कैन टेक दिस मच ऑफ प्रॉफिट. क्लियर? सो दिस इज द फंडा कि मैं कैसे डालता हूँ, मेरा चार्ट ग्रुप में जो भी डालता हूँ तो कैसे रीड करना है. सो दिस इज द वन चार्ट. Hope you understand how to read the chart. I will go many more charts, but just put in the chat box कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करके मेरा चार्ट कैसे रीड करना है एंड कहाँ पे ट्रेड करना है. इफ यू वांट टू ट्रेड दिस चार्ट, कहाँ पे ट्रेड करना है. जस्ट ब्रेक किया करके ट्रेड नहीं करना है. ब्रेक करने के बाद वन कैंडल नीड्स टू क्लोज अबव दैट. ओके, एंड देन अबव दैट यू हैव टू बाय. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट चार्ट. How to exit? Okay, so if you see in market you have to be decide your target. So if your loss is, I just explain you the how to exit. Many questions are there ki how to exit from that. Okay, so if you entered here, your stop loss is here. Your risk reward ratio while in the market, your stop minimum risk reward ratio is 1:2. First target is your technical analysis. Next support किधर है, यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है. सो योर फर्स्ट टारगेट इज योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस. तो यू हैव टू मार्क योर रेजिस्टेंसेस ना. ये आपके पास फ्यूचर पास्ट में जो भी चार्ट हुआ है उसका डेटा रहता है कि ऐसे लाइंस रहेंगे कि ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट्स रहेंगे, मल्टीपल सपोर्ट्स नीचे रहेंगे. तो आप इस लाइन के होता आया, ये आपका फर्स्ट टारगेट है. ओके, एंड स्टॉप लॉस जो भी कैंडलस्टिक आप एंटर करोगे उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा. एंड देन योर फर्स्ट रेजिस्टेंस इज योर फर्स्ट टारगेट, सेकंड रेजिस्टेंस सेकंड टारगेट. ऐसे आप स्टॉप लॉस मूव करते जा सकते हो. ओके, सो हाउ दिस इज द वन वे कि टारगेट कैसे करना है. देन अदर वेज आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का है, 1:2 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए आपका.
ओके, कि 1 रुपए की रिस्क ले रहा हो तो 2 रुपए तो प्रॉफिट होना चाहिए, एटलीस्ट 1.5 रुपए तो प्रॉफिट होना चाहिए, 1:5 कंजर्वेटिव भी जाएंगे तो 1 रुपए के रिस्क को 1.5 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए। तो 5 रुपए यदि रिस्क है आपका तो 7.5 का आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, सो मेरा 5 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 7.5 को एक मैं लाइन मारूंगा, जैसे ही ये वो क्रॉस करता है मैं स्टॉप लॉस उठा के उस लाइन पे रख दूंगा 7.5 पे। मैंने क्या किया, मैंने मेरा उतना तो मिनिमम प्रॉफिट बुक कर लिया, मैं एग्जिट नहीं हुआ, मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया है इस लेवल पे, ऊपर जितना जाएगा दैट इज माय लॉटरी और बाय बोनस, बट मेरा जो टारगेट है 1.5 रिस्क रेशियो वो मैंने कैच कर लिया। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन एग्जिट और वी कैन टेक अ स्टॉप लॉस। वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू से कि आपका ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, बहुत लोग सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। तो जस्ट मेक इट राइट कि आप जब भी मार्केट में ट्रेड करने होगे ना, आपका फर्स्ट टारगेट इज टू सेव यूर कैपिटल। आपके अकाउंट में 500 रुपए रहने दो या 10 लाख रुपए रहने दो, जो भी है ना, आपने 1 तारीख को मंथ के 1 तारीख को ट्रेडिंग स्टार्ट किया और आपने 30 तारीख को मंथ के आपके अकाउंट में 1 तारीख को 1,000 रुपए था, 30 तारीख को अगेन 1,000 रुपए ही है, देन ऑल्सो यू आर द सक्सेसफुल ट्रेडर। आपको आपका कैपिटल बचाना आना चाहिए, मार्केट में खेलने के बाद भी आपका कैपिटल यदि बच रहा है ना तो यू आर अ सक्सेसफुल, प्रॉफिट आ जाएगा इफ यू आर रेडी टू सेव योर कैपिटल। आप कैपिटल बचाना सीख गए ना, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आई गारंटेड यू। बट आपको ऐसा ट्रेड नहीं करना है कि 2,000 रुपए लॉस हुआ तो अभी मैं डबल क्वांटिटी करता हूँ और मेरा लॉस रिकवर करता हूँ। नो, एक बार लॉस हो गया, आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, आपका यू आर नॉट इन अ गुड माइंडसेट, डोंट ट्रेड, छोड़ दो। अपॉर्चुनिटी एवरीडे आता है, एवरी मिनट आता है मार्केट में, बट यदि आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है तो आप ट्रेड ही मत करो, मार्केट देखो ही मत, बंद करो, बाहर जाओ, घूम के आओ। इन अ बैड माइंडसेट डोंट ट्रेड। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि ट्रेड करो या कैपिटल डालो। 5,000 लॉस हुआ है और 5,000 जाएगा तो क्या होगा, और एक बार ट्राई करता हूँ, ये सारे बहुत रीजंस आते हैं दिमाग में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने वो गलतियां की है कि रिवेंज ट्रेडिंग बोलता हूँ मैं उसको, कि बदला लेना है मार्केट से, मार्केट के साथ बदला लेने की सोचो भी मत, मार्केट आपको घर बिठा देगा, जीरो कर देगा। मैंने इनिशियल स्टेज में 10 बार अकाउंट मेरा जीरो करके बैठा हूँ कि अकाउंट में 1 लाख डाला, जीरो हो गया, वापस 2 लाख डाला, जीरो हो गया, ऐसा पैसा 4 से 5 लाख रुपए मैंने लॉस किया इनिशियल स्टेज में। सो डोंट डू द रिवेंज ट्रेडिंग, बदला लेने का ट्रेडिंग मत करो। आपको लॉस हो गया, क्या क्यों लॉस हुआ, क्या हुआ, आफ्टर मार्केट क्लोज होता है ना 3:30 बजे आके वापस बैठो, एनालिसिस करो, क्या गलती किया, वर्क ऑन दैट गलती, जो भी गलती किया उसके ऊपर काम करो, और वो गलती हम फ्यूचर में नहीं करेंगे, ट्राई करो, बट रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। ऑलवेज कीप इन माइंड योर फर्स्ट टारगेट इज सेव योर कैपिटल। ओके, आपका कैपिटल बचना चाहिए, आपके पास कैपिटल रहेगा तो यू आर अ ट्रेडर और यू आर इन्वेस्टर। अदरवाइज आपके पास नॉलेज है, स्किल है, सब कुछ है, बट आपके पास कैपिटल नहीं है, देन व्हाट टू डू, कुछ नहीं। आपके पास अपॉर्चुनिटी दिख रहा है सामने, बट आपके पास कैपिटल नहीं है। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, अपॉर्चुनिटी अच्छा है बट अकाउंट में पैसा नहीं है। क्यों? कल मैंने गलती किया है, अकाउंट पूरा जीरो कर दिया है, आज मेरे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं 1-2 लाख बना सकता था, बट मेरे पास कैपिटल नहीं। सो अपॉर्चुनिटी मिस भी हो गया तो डोंट वरी, अपॉर्चुनिटी आएगा। जिस दिन आपका अपॉर्चुनिटी मिस होगा, दिमाग में ये रखो कि आज मैंने मेरा कैपिटल बचा लिया। ये माइंडसेट से काम करोगे ना तो आप लोग टिक पाओगे मार्केट में, क्योंकि मेरा एजेंडा है और मेरा ग्रुप जो भी है लर्न एंड अर्न का, मेरा एजेंडा है कि मार्केट में आप लोग रहो। बहुत सारे लोग आते हैं मार्केट में, 2-3 महीना काम करते हैं, चले जाते हैं, जो कि उनको पता भी नहीं होता कि वो बहुत अच्छा कर सकते थे, मगर उनकी गलती की वजह से वो जा रहे हैं और वो मार्केट को ब्लेम करे कि मार्केट में पैसा जाता ही आता ही नहीं है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड योर फर्स्ट टारगेट इज योर सेविंग योर कैपिटल, देन प्रॉफिट आएगा। एंड लॉसेस होगा, लॉसेस, बट हाउ टू मिनिमाइज दैट लॉसेस, कितना लॉस ले सकते हैं दिन में, कैसा डिसाइड करना है कि मैं कितना लॉस ले सकता हूँ। जो अमाउंट जाने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए 5,000 रुपए है कि 5,000 गया तो मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मैं जब भी प्रॉफिट करूंगा 25,000, 40,000 करूंगा। आपके लिए 500 रुपए गया तो कुछ नहीं फर्क, सबका अलग अलग अमाउंट रहेगा, सबका अलग अलग लाइफ है। सो आपके लिए फॉर एग्जाम्पल किसी को 500 रुपए जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, आपका दिन का स्टॉप लॉस 500 रुपए, आप उसके हिसाब से क्वांटिटी लेना है कि 10 क्वांटिटी लेता हूं मेरा स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस आपका चार्ट के हिसाब से होगा ना। चार्ट में आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का है, तो आप 500 रुपए लॉस के लिए कितना क्वांटिटी ले सकते हो, 100 क्वांटिटी ले सकता हो, तो उतना ही क्वांटिटी लेना है। चार्ट में आपका स्टॉप लॉस 1 पॉइंट का है, देन आप 500 क्वांटिटी ले सकते हो, क्योंकि आपका 500 का लॉस का कैपेसिटी है, तो आप 500 क्वांटिटी ले सकते हो। चार्ट में आपका स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का है, तो आप सिर्फ 20 ही क्वांटिटी ले सकते हो, तो ओनली टेक 20 क्वांटिटी।
ओके, एज पर दैट आपको क्वांटिटी, आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको क्वांटिटी मैनेज करना है। इन दैट केस ओनली यू हैव टू कीप इन, आपको वो आपको मार्केट में रखेगा। नहीं तो आप 500 रुपए का लॉस है, स्टॉप लॉस 25 का है, पर क्वांटिटी आगे 500 ही ले रहा है और स्टॉप लॉस हो गया 10,000 20,000 का लॉस हो गया, देन आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। एक बार कॉन्फिडेंस चला गया, नो वन कैन हेल्प यू। कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा है। सो होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि आपका क्वांटिटी कैसे मैनेज करना है, आपका स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है। इफ अंडरस्टैंड हुआ है तो जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स, सो आई विल गो इनटू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके ओके, सो बहुत सारे लोगों का यस आया है, सो आई विल गो, सो होप, सो जस्ट गो इनटू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो हाउ टू रीड द चार्ट, कैसे ग्रुप का चार्ट कैसे रीड करना है, यू अंडरस्टैंड। ओके, सो आई जस्ट पुट, सो नेक्स्ट पॉइंट इज डूज एंड डोंट्स इन द मार्केट। सो आई जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस की मार्केट में आप लोग क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो इफ यू वांट टू राइट दिस पॉइंट यू कैन राइट, बिकॉज ये मैंने 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आया है। अभी हमारे सेशन में बहुत सारे नए लोग रहेंगे, एक्सपीरियंस ट्रेडर रहेंगे, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर रहेंगे उन लोगों को पता रहेगा, उन्होंने एक्सपीरियंस किया रहेगा। जो नए रहेंगे उनका अच्छा है कि मुझे इनिशियल स्टेज में बताने के लिए कोई नहीं था मीन्स मैंने कभी ढूंढा भी नहीं था कि कोई है क्या, क्योंकि पता ही नहीं था कि ऐसा कोई सिखाने वाला रहता है। शेयर मार्केट में सिखाते भी है लोग, सीख के कर सकते हैं, ये पता नहीं था। जब तक पता चला तब तक 4-5 लाख लॉस हो गया था। Okay, but nowadays from last 3 years I am a successful trader and मेरा कंसिस्टेंटली इनकम मार्केट से हो रहा है। यस, नाउअडेज आल्सो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, ऐसा नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। 10 ट्रेड में से 3-4 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, 5-6 बार ही मेरा टारगेट हिट होता है। बट जब भी 5-6 बार मेरा टारगेट हिट होता है मैं अच्छा प्रॉफिट कर लेता हूँ, बट जब भी लॉस होता है आई विल कट इट वेरी शॉर्ट। मैं 2,000 3,000 5,000 के आगे लॉस नहीं लेता हूँ। बट ऐसे भी दिन थे कि दिन में मैंने 3-3 लाख रुपए प्रॉफिट एक दिन में भी मैंने किया हुआ है। 1 लाख रुपए प्रॉफिट एक दिन में, 50,000 रुपए प्रॉफिट एक घंटे में, ऐसा मैंने किया हुआ है। ओके, सो मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मैंने इतना पैसा किया है, बट ये पॉसिबल है इफ यू हैव द नॉलेज। ओके, इफ यू हैव द स्किल्स, इफ यू हैव द प्रॉपर माइंडसेट, आपके पास प्रोसेस है, आपके पास डिसिप्लिन फॉलो करने की आदत है, तो आप लोग कर सकते हो। आप लोग सब सीखोगे और डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। यार मेरा स्टॉप, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आपको बताओ, यार स्टॉप लॉस हिट होके वापस ऊपर जाता है, होने दो, हिट होके वापस ऊपर जाता है। ये 1-2 बार 10 बार आपको एक्सपीरियंस आया रहेगा, बट उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाना छोड़ दोगे, ये गलत है। एक दिन वापस नहीं गया तो आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट कर देगा वो। ओके, सो ऑलवेज कीप इन माइंड, विदाउट हैविंग स्टॉप लॉस डोंट ट्रेड, इट्स माय फर्स्ट स्टेप। सो आई जस्ट go to the next point, do's and don'ts. I will first tell you the don'ts, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको लोगों को बोलता हूँ कि ट्रेडिंग विदाउट प्रॉपर स्किल एंड नॉलेज, आप चाहिए तो ये लिख के ले लो पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपको आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल देंगे। मतलब आप लोग ये नहीं करोगे ना तो आप लोग फेल नहीं होगे। क्या करना है तो मैं आगे बताऊंगा, बट क्या नहीं करना है वो बहुत सा कम लोग बताते। मार्केट में प्रॉफिट कैसा आता है क्या आता है सब लोग बताते, क्योंकि सब लोग प्रॉफिट के बारे में ही बात करते, लॉस के बारे में कोई डार्क साइड कोई नहीं बताता है। बट मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, मेरे भी होते हैं। मैं इतने साल के 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी बोलता हूँ कि लॉसेस होते हैं, बट हाउ यू मैनेज योर लॉसेस, दैट इज योर स्किल। पैसा बनता है क्या मार्केट में, बहुत बनता है, बट लॉसेस भी होते हैं, बट हाउ यू मैनेज, दैट इज योर स्किल। सो फर्स्ट पॉइंट की ट्रेडिंग विदाउट प्रॉपर स्किल एंड नॉलेज मत ही करो। करना है आपको थोड़ा सा नॉलेज है, एक क्वांटिटी में करो, आपका नॉलेज चल रहा है क्या, आपने जो सीखा वो चल रहा है क्या, चेक करो। 1-2 क्वांटिटी में करोगे तो 1,000-500 रुपए लॉस से किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, या 100-200 रुपए लॉस से किसी को, बट वही लॉस आपको 1-2 लाख 5 लाख हो गया तो फर्क पड़ता है। सो कम पैसा डालो, कम लॉस में ज्यादा सीखो। 10 रुपए 100 रुपए लॉस हो गया, क्यों लॉस हुआ, उसमें जो लर्निंग आएगा वो लैक्स ऑफ रुपीज का लर्निंग है, कि वो लर्निंग आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। कितना भी टेक्निकल एनालिसिस किसी ने भी सिखाने दो आपको, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे ना, यू कैन नॉट बी अ ट्रेडर, क्योंकि प्रैक्टिकल मार्केट ही आपको बहुत सारा सिखाता है। सो ट्रेडिंग विदाउट प्रॉपर स्किल एंड नॉलेज अवॉइड करो। बिग पोजीशन साइज, इनिशियल स्टेज में आप पोजीशन साइज, मैंने जैसे बोला कि आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैनेज करो। क्वांटिटी आया मार्केट में, आप ऊपर जा रहा है करके 2,000 लिया नहीं, आपका रिस्क कैपेसिटी डिसाइड करो कि मेरा दिन का कैपेसिटी 1,000 रुपए है, मेरा मार्क चार्ट पे स्टॉप लॉस दिख रहा है 10 पॉइंट का, तो मैं 100 क्वांटिटी ले सकता हूँ, तो 100 ही क्वांटिटी ले लो टिल आपको
1000% कंफर्म है कि ये ट्रेड चलने ही वाला है, बट आपका जो भी मनी मैनेजमेंट रूल है उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करो। जिस दिन आपने उसमें कॉम्प्रोमाइज किया, यू विल नेवर बी सस्टेन इन अ मार्केट मोर देन 1 or 2 months। एक दिन में भी आप जीरो हो सकते हो। मनी मैनेजमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो। तो पोजीशन साइजिंग पे काम करो। जो भी ट्रेडर यहाँ पे है लॉसेस किए हुए तो उनको पता रहेगा कि उनकी पोजीशन साइज इतनी बड़ी थी कि वो बेयर नहीं कर पाए लॉस। देन ओके, देन ओवर, सो यू अंडरस्टैंड सेकंड पॉइंट, बिग पोजीशन साइजिंग। सो पोजीशन साइजिंग मैच करो। देन ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है कि मेरा आज लॉस हुआ है एंड देन मैं आगे ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट निकालता हूँ। सो जब भी आप ओवर ट्रेडिंग के माइंडसेट में जाओगे ना, लैपटॉप डायरेक्टली बंद करो और बाहर घूमने जाओ लॉस हुआ तो। बट डोंट ट्रेड ओवर कि मैंने अभी लॉस किया तो मैं 100 क्वांटिटी लिया था, 2000 लॉस हुआ, अभी 200 क्वांटिटी लेता हूँ, सो लॉस रिकवर होकर थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। आगे लॉस होता है, अभी 500 क्वांटिटी लेता हूँ, सो ये नहीं होगा। सो डोंट डू दैट, ओवर ट्रेडिंग मत करो। देन रिवेंज ट्रेडिंग, सेम पॉइंट है रिवेंज ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग की। बदला, मार्केट से बदला मत लो, मार्केट के साथ रहो। मार्केट गॉड है, मार्केट इज ऑलवेज राइट, कीप इन माइंड, मार्केट इज ऑलवेज राइट। मार्केट कभी गलत नहीं होता है, हम लोग गलत होते हैं, हमारा एनालिसिस गलत होता है। मार्केट इज ऑलवेज राइट। तो कीप इन माइंड कि मार्केट से बदला नहीं लेना है, मार्केट और ट्रेंड के साथ रहना सीखो। ट्रेंड नहीं छोड़ना है। ट्रेंड यदि अप है तो यहाँ से नीचे आएगा तो मैं सेल कर लेता हूँ, मार्केट गिरने वाला है, नहीं। मार्केट यदि ऊपर जा रहा है, आपका एनालिसिस मार्केट के साथ है, देन यू कैन गो इनटू द ट्रेड। यदि आपका एनालिसिस बोल रहा है कि मार्केट गिरने वाला है बट मार्केट अप जा रहा है, कॉन्ट्रेरी है, उस दिन ट्रेड मत करो। कोई जरूरत नहीं कि एक बात ध्यान में रखो कि एवरीडे ट्रेड करना नॉट नेसेसरी। मेरे कुछ दोस्त है जो फुल टाइम ट्रेडर है मेरे साथ, वो वीक में 2 या 3 ही ट्रेड करते हैं, बट जो वो वेटिंग फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट सेटअप, और वो अच्छे क्वांटिटी हिट करते हैं। 1 लाख 2 लाख 3 लाख का प्रॉफिट एक ट्रेड या 2 ट्रेड में आ जाता है। एंड दे फुल होल वीक दे ओनली स्टडी और एनालाइज द चार्ट। उनका फोकस ओनली ऑन स्टडी एंड एनालाइजिंग द चार्ट और प्रैक्टिसिंग द चार्ट। ट्रेड वीक में 2 या 3 ही करते हैं। मैंने ऐसे ट्रेडर देखे, हमारे ग्रुप में भी है कुछ लोग जिन्होंने मुझे पर्सनली भेजा है कि दिन में 10-10 ट्रेड कर रहे हैं। जो फुल टाइम ट्रेडर है ना, वो भी नहीं करता है 10-10 ट्रेड दिन में। और कुछ हमारे ग्रुप में है जो, मेरा खुद का है, मैं खुद दिन में 3 ट्रेड करता हूँ यदि मेरा टारगेट अच्छा नहीं होता, बट 3 से ज्यादा मैं मैक्सिमम टाइम नहीं करता हूँ। एक्सपायरी डे, बैंक निफ्टी एक्सपायरी डेज में कभी कभी मैं 4-5 ट्रेड करता हूँ, क्योंकि एक्सपायरी होता है, प्रीमियम कम होता है, लॉसेस हुआ तो भी कम होता है, सो इन दैट केस ओनली। बट अदरवाइज 3 ट्रेड के ऊपर मैं नहीं जाता हूँ वीक दिन में। सो आपका वो फाइनल करो कि मैं दिन में इतने ट्रेड करूंगा, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, नहीं तो आपका माइंड सेट, आपका पीसफुलनेस निकल जाएगा। आप कभी भी दिमाग से शांत नहीं रह पाओगे, दिमाग में वही चलता रहेगा, ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग। क्योंकि हमें ये प्रोफेशन में आने से पहले हमें अपना पर्सनल लाइफ, हमारा हेल्थ, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। यदि पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है ड्यू टू ट्रेडिंग, ड्यू टू लॉसेस, देन ये करके कुछ फायदा है नहीं। आपको क्या चाहिए यहाँ से? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फैमिली को अच्छा टाइम देना है, क्वालिटी टाइम देना है, तो यू हैव टू बी पीसफुल। तो उसके लिए आपको आपके रूल्स बनाने चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है कि आप न्यूज, दोस्त ने बताया, इसने बताया, अतुल ने बताया करके मैंने ट्रेड लिया, नो। मैंने भी बताया ना, 100% श्योर है, आप ले लो, डोंट ट्रेड। आप एक बार जाके खुद एनालिसिस करो, आपका एनालिसिस मेरा एनालिसिस मैच हो रहा है, आप 200% श्योर हो गए, देन टेक अ ट्रेड। अतुल ने बताया करके ट्रेड मत ले लो, या किसी दोस्त ने बताया ट्रेड मत ले लो। वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने भी बताया, आपने ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट हो गया, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल दैट प्रॉफिट। बट लॉस हो गया तो ऑल्सो यू आर रिस्पॉन्सिबल। अतुल ने बताया, किसी दोस्त ने बताया, तो वो आपका लॉस बेयर करने नहीं आएगा। सो आपको आपका कैपिटल बचाना है, सो एनालिसिस खुद करो। हाँ, सपोर्ट ले लो। इनिशियल स्टेज में आपको किसी मेंटोर का, किसी जिसको अच्छा नॉलेज है, किसी का भी सपोर्ट लगेगा, सपोर्ट ले लो, सीखो, और आपका एनालिसिस उसका एनालिसिस मैच कर रहा है, इन दैट केस यू गो अहेड। ओके, so these are the don'ts that you have to, you don't do in the market. So what to do? So 11:30 is already there, so I just explaining कि क्या करना चाहिए। So every trade you should have a stop loss, keep in mind। so लिख के ले लो, every trade you have to stop loss, without stop loss don't enter। stop ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यदि मेरे अगेंस्ट ट्रेड गया तो मैं कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए। टारगेट नहीं भी पता हुआ ना, कोई इशू नहीं है, बट आपको स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए मेरा, वो पता ही होना चाहिए। विदाउट दैट, वो पता नहीं तो ट्रेड में एंटर मत करो, कितना भी श्योर ट्रेड रहने तो एंटर मत करो, सेव योर कैपिटल। सो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। ओके, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सेव योर कैपिटल टू ट्रेड टुमारो। विदाउट कैपिटल यू आर नॉट अ ट्रेडर और इन्वेस्टर। आप कैपिटल के बिना ट्रेडर नहीं हो, इन्वेस्टर नहीं हो। सो आपका सबसे पहला टारगेट है
कैपिटल सेव करना है। ओके, एवरी ट्रेड, यदि आप ट्रेड ले रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट आपके ध्यान में होना चाहिए कि मुझे 1 रुपए की रिस्क ले रहा हूं तो मिनिमम मेरा टारगेट है 2 रुपए प्रॉफिट। उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहो। 1 रुपए की रिस्क ले रहे हो और 10 पैसा प्रॉफिट हो गया, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि प्रॉफिट में गए तो 500 रुपए भी प्रॉफिट हो गया तो एग्जिट कर देते हैं कि एग्जिट है, बस हो गया, प्रॉफिट हो गया। बट जब लॉस में जाता है ट्रेड तो 500, 1000, 2000, 3000, 10,000, टिल वो होपिंग की मार्केट ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। उल्टा है अपने यहाँ पे, प्रॉफिट को वेट नहीं करते कि आज और प्रॉफिट होने दो, और प्रॉफिट होने, नहीं वेट करते। लॉस जब होता है ना तो लॉस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बट दे आर होपिंग की मार्केट ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। बट जब भी प्रॉफिट होता है, 500 भी प्रॉफिट हो गया तो एग्जिट करते हैं। वहां पे होप नहीं करते कि और ऊपर जाएगा तो 500 का 1000 प्रॉफिट होगा, 2000 होगा, वो होप नहीं करते। बट लॉस में, सो कीप इन माइंड कि तुम्हारे लॉसेस शॉर्ट कट करो। जब भी लॉस में जा रहा है ट्रेड, आपको पता है आपके स्टॉप लॉस पे आया, ही एग्जिट हो गया, डोंट ट्रेड। अगेन आपके लेवल पे आया तो आप नया ट्रेड ले लो। एक ही ट्रेड में 10,000 डालने से अच्छा है, मैं बोलूंगा कि 10 ट्रेड में 10,000 लॉस भी हुआ ना तो कोई इशू नहीं, बट 10 अपॉर्चुनिटी आपने ट्राई किया। एक ही ट्रेड में 10,000 डालने से अच्छा है, लॉस होने से अच्छा है 10 ट्रेड में 10,000 जाने दो। 10 बार आपको कुछ तो नया सीखने को मिलेगा और वो 10,000 में आप कुछ सीखोगे। एक ही ट्रेड में 10,000 गया तो एक ही गलती होगी, 10 ट्रेड में 10,000 गया तो 10 गलतियां होगी। सो यू लर्न, आपको 10 गलतियों से सीख मिलेगी कि ये गलतियां हमें आगे नहीं करनी है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड कि क्या करना है मार्केट में। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको आपकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए मार्केट में। मार्केट में मैंने जैसे बोला कि एक दिन में आप 1 करोड़ कमा सकते हो, एक दिन में आप 1 करोड़ गला सकते हो, एक दिन में 10 रुपए कमा सकते हो, 100 रुपए कमा। आपकी बाउंड्री डिसाइड करो, आप क्या लेवल के ट्रेडर हो, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी है, आप क्या लेवल का एक्सपेक्टेशन मार्केट, वो बाउंड्री डिसाइड करो कि आपको दिन में कितना लॉस बेयर हो सकता है, दिन में कितना प्रॉफिट आने के बाद मैं बस बंद करूं ट्रेडिंग। कोई तो आपको एक ये होना चाहिए ना बाउंड्री कि आपको कहाँ पे बंद करना है आज का दिन। 9:15 से 3:30 फुल डे ट्रेडिंग नहीं करना है ना। तो मेरा 2,000 प्रॉफिट हुआ, आई हैव टू क्लोज। सो एक बाउंड्री डिसाइड करो कि मेरा इतना लॉस हुआ, आई हैव टू क्लोज, इतना प्रॉफिट हुआ, आई हैव टू क्लोज। ओके, सो ये बाउंड्री डिसाइड करो। ये बाउंड्री नहीं रहेगी ना तो आप पीसफुल लाइफ नहीं, ट्रेडिंग लाइफ बोल रहा हूँ, पीसफुल ट्रेडिंग लाइफ आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। जस्ट इमेजिन कि 10 बजे आपका ट्रेड खत्म हुआ, आपका टारगेट है 2,000 रुपए, 10 बजे आपका ट्रेड खत्म हुआ, प्रॉफिट हो गए। 10 बजे से लेकर पूरा दिन आपके पास फ्री है, आप जो चाहे वो कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। आपका आज का दिन का टारगेट आ गया। मेरा बहुत टाइम से मेरा ऐसा होता है कि मैं 10 बजे आई एम डन फॉर द डे। मेरा फुल डे मार्केट चालू रहता है, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आता है, मैं नहीं लेता हूँ, बट मैं पूरा दिन एंजॉय करता हूँ। मैं फैमिली के साथ रहता हूँ या बाहर जाता हूँ, दोस्तों के साथ जाता हूँ, जो भी काम रहते हैं बाकी वो कर लेता हूँ, बट आई एम नॉट ट्रेडिंग इन दैट डे। और कभी कभी ऐसा होता है कि 3 बजे तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो फुल डे बैठना पड़ता है कि अरे आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। कभी कभी 3 बजे, 2:30 बजे आफ्टर यूके यूएस मार्केट स्टार्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। सो उस दिन में फुल डे मार्केट में बैठना पड़ता है। सो आपको वो लाइफ एंजॉय करना है एज अ ट्रेडिंग, तो आपको टारगेट्स डिसाइड करने पड़ेंगे। ओके, सो दीज आर द डोंट्स एंड डूज एंड डोंट्स फॉर द मार्केट। सो होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे करना चाहिए मार्केट में। तो आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर रहेंगे तो क्विकली 5 मिनट मिलेंगे, ऑलरेडी वी आर डिले विद द 5 मिनट्स। सो 5 मिनट में आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, so you can put in the chat box so I can answer them. So how to select stock एक आया हुआ है, so I will take 5 minutes more for the question and answer. So how to select stock, जैसे मैंने बोला ना कि आप स्टॉक डेली सिलेक्ट करते या ढूंढोगे ना तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी आपको बताएगा ना कि ये स्क्रीनर यूज करो, ये यूज करो, नो, वो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं है। आप लोग एक आपका खुद का वॉच लिस्ट बनाओ 5 या 10 स्टॉक का और उसी के ऊपर फोकस करो। वही 5, मैं खुद सिर्फ बैंक निफ्टी पे ही फोकस करता हूँ, मैं दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज ही नहीं करता हूँ ट्रेड करने के लिए। आई मार्क निफ्टी 50 चार्ट्स डेली। निफ्टी 50 में जो भी 50 चार्ट है वो मैं मार्क करता हूँ और मैं ग्रुप पे डालता हूँ, आपके लिए डालता हूँ, या मेरे जो भी मेरी वाइफ ट्रेड करती है, मेरी सिस्टर ट्रेड करती है, उनको डालता हूँ, बट आई जस्ट फोकस ऑन द बैंक निफ्टी। सो आप कोई तो 1-2 इंस्ट्रूमेंट ले लो और उसी के ऊपर फोकस करो। अपॉर्चुनिटी उसमें मिला, ओनली ट्रेड इन दैट इंस्ट्रूमेंट। डोंट गो फॉर कि एन नंबर ऑफ स्टॉक है मार्केट में, हम हर एक स्टॉक के ऊपर ध्यान नहीं रख सकते हो। लिस्ट बनाओ खुद का इनिशियल स्टेज में। आप एक बार एक्सपीरियंस हो जाओगे 5-6 महीना, आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में एंट्री करना है, कौन से में नहीं करना है। ओके, सो स्टॉप लॉस फॉर पोजिशनल ट्रेड। सो ओके, स्टॉप लॉस फॉर पोजिशनल ट्रेड, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके मार्क करके रखो। आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस पे मैंने एंट्री लिया है, बिलो दैट रेजिस्टेंस आपको स्टॉप लॉस है। यदि फ्यूचर में वो रेजिस्टेंस की बिलो आ जाता है, आप एग्जिट करना है।
क्योंकि आपने वो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया हुआ है कि उसके ऊपर अभी जाएगा, उसके रेजिस्टेंस उसको सपोर्ट हो गया, तो वो सपोर्ट के नीचे चला गया तो यू हैव टू एग्जिट। सारे लोगों का क्वेश्चन है कि वेयर टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस। ओके, सो आई एम प्लानिंग फॉर दैट बट नॉट एट। तो जब भी मेरा प्लान होगा या कुछ मैं रेडी करने को देख रहा हूँ कि कोई ट्रेनिंग दे सकते हो क्या, बट कभी मैंने लाइफ में किया नहीं है ट्रेनिंग, सो आई एम प्लानिंग फॉर दैट। कुछ होता है तो आई विल अपडेट यू गाइज फॉर दैट। जीरो दा फॉर ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लुक फॉर द बिफोर द मार्केट स्टार्ट। सो मार्केट स्टार्ट होने से पहले कुछ देखना है, मार्केट स्टार्ट होने दो। आपका मार्क स्टार्टेड होने से पहले आपकी मार्किंग रेडी होनी चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आपकी मार्क है वो चार्ट पे मार्क होनी चाहिए। आपके सपोर्ट लाइन पे आया, यू हैव टू बाय। रेजिस्टेंस ब्रेक किया, आपको बाय करना है। रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लिया और नीचे जा रहा है, आपको सेल करना है। हाउ टू डिसाइड एंट्री पॉइंट। सो एंट्री पॉइंट डिसाइड करने के लिए मैंने बताया ना कि रेजिस्टेंस ब्रेक किया, वो कैंडल क्लोज होना चाहिए रेजिस्टेंस के ऊपर, देन अबव दैट कैंडल यू हैव टू बाय, बिलो दैट कैंडल योर स्टॉप लॉस इज देयर। Okay, so guys, it's 11:38 almost, so we have to close this session. You put your all question in chat box or in a group or personal WhatsApp to me. Each and every question will be answered. Okay, so don't worry, no question will be unanswered. I will answer all the questions. So just last one, once again I will thanks all of you for joining this and attending the session. So let's learn and earn together. So hope you enjoy. So just put in the chat box you enjoy the session or not. Okay, thank you guys, thank you. So put your all the questions to WhatsApp to me or in a group or in a chat box. I will answer each and every question. Thank you.